I really feel honored to be the part of this national seminar on social energy inherent in Ram Katha and its visual representations. The chief guest of this inaugural session, our member of Legislative Assembly, a very active, dynamic, Shri Brij Bhushan Garola ji, my guru, my teacher, Professor D.R. Prohit ji, a well-known face of folk art and culture of Uttarakhand. We have Professor K.M. Pandey ji. He is and he has been and even is still at present a regular person who heads the Department of English at HNB Garhwal University in various capacities, be it the evaluation of thesis or part of any such seminars and conferences. We have Professor Sadashiv ji, and again a very, very dynamic principal of DAV PG College. You just give a big hand to Professor Nainwal, because he's a person who puts this academics of Doiwala PG College on track, documented everything day and night, putting it in the NAC assessment and graded at least in that level, at that level where we can recognize, yes, PG College Doiwala is doing very well. Thank you so much, sir. All faculty members, and most of them are my student and sir's third generation. Sir, आप दादाजी हैं, because आप मेरे गुरु हैं, मेरे कई बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आपके कई रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे बैठे हैं, and in that sense, I would like to appreciate the English Department of Doiwala PG College कि ये सितारों की लाइन में दो चमकते सितारे हमने डोईवाला पीजी कॉलेज को दिए हैं, प्रोफेसर राकेश जोशी and Professor Pallavi Mishra. So they are always active, you know. एक गजल लिख रहे हैं, एक फिक्शन भी लिख रही हैं और कविता संग्रह भी लिख रही हैं और सब कुछ लिख रही हैं. तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के सारे बच्चे जहाँ जहाँ हैं, अंजू भी बैठी है, प्रमोद भी बैठे हैं, पूजा भी बैठी है, बहुत सारे लोग हैं, सुनैना भी बैठी है और केंद्रुआ का नाम ही भूल गई मैं. She is there. So all are there, बहुत बच्चे आए हुए हैं. So for us it is a very happy moment, and as I said that I feel honored to be the part of this very important national seminar. मुझे लगता है कि for what this national seminar is all about. पल्लवी ने जब थीम के बारे में बोला तो शायद ये नेशनल सेमिनार ये है कि कैन वी assess this राम कथा on the measurement or research methodology given us by the Western people, and the syllabus of all the universities are overloaded with these critical theories. And for what we are using these critical theories? Can we measure Ram Katha with a tool of Derrida's grammatology? Can we do it with post-structuralism? She defined eco-critical theories, then new historicism, culture materialism, the big jargons of Western theories, where they are telling, as she said, that differs and not able to find the absolute meaning in anything. That is his vicious circle of signifiers. The signifiers and signifiers and signifiers and no signified. So, are we able to find out that ultimate meaning or the signified which we all know about Ram Katha? This is only the Katha. जिसको आप कहते हैं ना, कोई आपके पास आता है, वो अपने दुख दर्द बोलता है, आप कहते हैं आप राम कथा मत लगाओ. तो राम कथा should be measured by Western critical theories. जैसे कपिल कपूर जी ने कहा कि कोई भी critical theory राम कथा के measurement में नहीं लग सकती. इसका मतलब है राम तो कण कण में है, जैसे राखी बता रही है. राम सोशल एनर्जी का द बेस्ट एग्जाम्पल इज, आज तक आप एक विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो विक्ट्री है अंधकार की, प्रकाश की विजय अंधकार के ऊपर. और वो विक्ट्री न केवल आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पल्लवी डिफाइंड
कि कैसे हर गांव में, हर शहर में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिजी द्वीप समूह में, सारी जगह राम कथा सेलिब्रेट की जाती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड आवर साइके, आवर माइथॉस, आवर माइथोलॉजी, एवरीथिंग, जो कुछ भी आज हमारा एग्जिस्टेंस है वो राम के प्रतिबिंब से जगमगा रहा है। सब कुछ हमने राम से ही सीखा है। राम ही हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वेस्टर्न थ्योरी तो कहती है कि देयर इज नथिंग गुड एंड बैड, जो आपके लिए गुड है वो मेरे लिए बैड हो सकता है। मॉरलिटी डज नॉट हैव इट्स ओन स्टैंड, व्यू पॉइंट है, इस पॉइंट से देखूंगी तो मुझे आप मॉरली हाई लगेंगे, मैं उधर चली जाऊंगी तो इधर के लोग आपको मॉरली लो लगेंगे। So when everything is in a very diluted form, then what is ultimate? But despite that we always feel कि भाई कैसा होना चाहिए, तो आप कहते हो भरत सम भाई, आप कहते हो कि पति कैसा होना चाहिए, तो रामचंद्र जी का नाम याद आता है। आपने कहा जेंडर डायनामिक्स भी है, उसमें अलग बात करेंगे। सीता आइडियल, राम आइडियल, भरत आइडियल, उनसे आइडियल उर्मिला, श्रुतश्री और वो तमाम महिलाएं जो भरत के वापस न लौटने पे और शत्रुघ्न के वापस न लौटने पर 14 साल तक इंतजार करती रही। उनका जो त्याग है, उनकी जो तपस्या है, क्योंकि जो राम राज्य है या जो रामायण है वो किसी एक व्यक्ति के त्याग और तपस्या की कहानी नहीं है, एक से बढ़कर एक, और वो सिलसिला इतना अनंत है। राम कथा, हरि कथा इतनी अनंत है रामचंद्र जी की कथा कि उसके जितने एस्पेक्ट्स आप निकालेंगे तो देन यू कैन कंपेयर दैट होल वेस्टर्न लिटरेचर, यू विल feel and find like pygmies, you know, you won't find anything so ultimate, so solid in it. रामचंद्र जी राम ही है जब तक कि वो वनवास नहीं गए, और वनवास से आके वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। और अभी हम राकेश के साथ बात कर रहे थे और राकेश अपने माजरा महादेव की हमें कथाएं बता रहे थे। राकेश भी जो आज राकेश दिख रहे हैं ये माजरा महादेव से आने के बाद दिख रहे हैं आप, नहीं तो ही इज ऑलवेज रेस्टलेस एंड डूइंग दिस एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड ऑलवेज एनर्जी इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, बट स्टिल ही वाज नॉट दैट स्टेबल अल्टीमेट Rakesh what he is today. What I mean to say, I'm not comparing Banwas or Rakesh ka ek saath, because Mazra Mahadev is a fantastic land of Mahadev. What I mean to say that if we won't go outside of our home, हमें अनुभव नहीं होता है। हमें जो अनुभव, जो हम अपने बच्चों को भी बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं कि वो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे, प्लीज लेट लूज, उनको जाने दीजिए। जितना बाहर जाएंगे, जितना संघर्षों में पलेंगे, जितनी बाहर की दुनिया देखेंगे, उतने मज के आएंगे, उतने सोशल डायनामिक्स को समझेंगे। इसलिए गांधी भी गांधी तब बने जब उन्होंने भारत के पूरी यात्रा करी। विवेकानंद भी विवेकानंद तब बने जब उन्होंने भारत, विश्व में तब गए, पहले भारत की यात्रा की। तब तक आप दुनिया को नहीं समझ सकते जब तक आप दुनिया के दर्द को महसूस नहीं कर सकते वहीं पर जाकर। And then Pallavi defined about marginalization, so-called Western theory of subalternism. Lot of theories are there जो कहती है can the subaltern speak, voices of the marginalized people. ये सारा जो academics हमारा especially English literature का है, ये English literature के डायनामिक्स को समझने के, इसके एकेडमिक्स को समझने के लिए ये जो सेमिनार आपने रखा है, ना, आई रियली कांग्रेचुलेट डॉक्टर पल्लवी फॉर डिसाइडिंग दिस टॉपिक। दिस टॉपिक इज लाइक, आप कौन सा डायनामिक जहां पे आके वेस्टर्न थ्योरी समाप्त हो जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हम ही से ले गए, फिर उसको मर्चेंडाइज किया, फिर उसको एक थ्योरी बनाई, और हमें लगा ये तो हम जानते थे, पर फिर भी अच्छी सी इंग्लिश में, अच्छी किताबों के साथ, अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ हमको दे गए, तो हम जरा कंफ्यूजन में आ गए। सर अभी बताएंगे कि राम कथा कितने रूप में उत्तराखंड में है, फोक से राम कथा का क्या इंपॉर्टेंस है, पूरे भारत की राम कथाएं कहां, कैसी, किस रूप में होती हैं। सो जो डेमोक्रेटिक हो गया, जो जन जन का हो गया,
जिसको जन के लिए समर्पित जो कथा हो गई उसी की मान्यता है। आपको किसी भी एक अनपढ़ यानी जो अशिक्षित है, विद्या से अनपढ़ नहीं है, वो स्किल्ड लोग हैं, उनके पास विद्या है पर शिक्षा नहीं है, जो हम लोगों ने ग्रहण करी है यूनिवर्सिटी में, ये शिक्षा है, दैट्स ओनली शिक्षा, विद्या नहीं की हमने ग्रहण। जो अशिक्षित लोग हैं, जो वन में रहने वाले वनवासी हैं, जो समाज में पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो महिला हैं, उन सब के लिए एक एकेडमिक डायनामिक्स एक्सप्रेस करती है राम कथा। और वो राम कथा अपने आप में उस चीज से आगे निकल जाती है, शून्य से आगे इन्फिनिटी की ओर निकल जाती है, अनंत की ओर निकल जाती है। जहां पे सारे एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाते हैं, वहां पे राम कथा आपको बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड दैट वी कॉल मेटाफिजिकल वर्ल्ड, उस मेटाफिजिकल वर्ल्ड में ले जाती है जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर अनुत्तरित है। लेकिन राम कथा उन प्रश्नों के भी उत्तर देने की कोशिश करती है, प्रश्नों की जिज्ञासा को समाप्त करने की कोशिश करती है। एक जिज्ञासा से दूसरी जिज्ञासा पैदा होने का नाम ही राम कथा है। ऐसा नैरेटिव है, ऐसा सुलझा हुआ नैरेटिव है, ऐसा गुथा हुआ नैरेटिव है कि अगर एक भी कथा को, आप जटायु की कथा को बाहर निकाल दीजिए, आप कहिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप राम कथा को नहीं समझ पाएंगे, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाएंगे, आप सोशल अकाउंटेबिलिटी को नहीं समझ पाएंगे, जिसका समाज में आज सबसे बड़ा लैक दिखाई देता। किसी का बच्चा जा रहा है, आप कहते हैं हाँ मैंने देखा तो था, पता लगा वो किडनैप हो गया। कुछ साल पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे याद है कि लोग हमें रोक रोक के पूछते थे कि आप कहां जा रहे हो। अगर उनको ऐसे समय में हम कहीं जाते हुए दिखाई दिए जिसमें नहीं दिखाई देना चाहिए था, तो वो पूछते थे। बच्चे हमारी एक तरह से साझी विरासत थे। आज आप कहते हैं होगा बच्चा, मुझे क्या करना, भेजा होगा माँ बाप ने, और माँ बाप भी इतने आइसोलेटेड हो गए, इतने सेंट्रलाइज्ड हो गए कि उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसी जटायु सोचते ले जा रहा होगा रावण, किसको ले जा रहा, मुझे क्या मतलब। So that social accountability that we all are collective as a society, we all are collective as a nation, we all are collective as a community. अगर ये सेंस कहीं दिखता है तो रामायण में दिखता है। त्याग का मैंने आपको बता दिया, एक एक से महारथी, एक एक से महारथी त्याग में पैदा हुए। कहीं भी आप किसी को विलेन के रूप में उसके भी मोक्ष की कामना करते हैं तो रामायण में ही कर सकते हैं कि रावण को भी मोक्ष कैसे मिले, इसका भी प्रबंध रामचंद्र जी ने किया। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के बम कभी यूक्रेन में गिरा दे रहे हैं, कभी वहां फिलिस्तीन में, कभी फिलिस्तीन वाले इजराइल में। मरे तो मरे, बच्चे मर रहे, महिलाएं मर रही है, बूढ़े मर रहे हैं, हमें क्या लेना देना है। एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दुश्मन के लिए भी, ये भी आपको राम कथा में दिखाई देता है। मल्टी लेयर्ड एक्सप्रेशन, मल्टी लेयर्ड जो सबसे बड़ा, जिसको पल्लवी डिफाइन कर रही थी, जो आज वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और कुछ हद तक हमने भी ले लिया है, अपने सिलेबस में रखा है, ग्रामेटोलॉजी को और डेरिडा के डीकंस्ट्रक्शनिज्म को। वो डीकंस्ट्रक्शनिज्म जिसको अगर सिंपल शब्दों में बताएं तो वो कहता है कि किसी भी चीज का कोई मीनिंग नहीं होता। यू कांट एक्सप्लेन द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ एनीथिंग। इफ यू हैव टू एक्सप्लेन द वर्ड टाउन, you have to use the signifier of a village, or you have to use the signifier of a city. Town which is not a city but less than a city, town which is not a village but more than a village. So in that way we are in the vicious circle of the ultimate meaning of anything, any object, be it a mic, be it a seminar, be it a hall, be it a human being, anything. We use thousands of signifier to explain the exact meaning. We could not understand it because हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, हमारी अपनी भाषा है और अनेक भाषाओं से सुसज्जित ये देश है। तो हम लोगों को ए फॉर एप्पल माने सेब सिखाया तो हमें लगा मीनिंग आता है हमें, जबकि हमें मीनिंग नहीं आता। जब हमने एप्पल देखा तो ही मीनिंग आया हमें। अगर हमारे यहाँ, जैसे सर को मालूम है, एक प्रोफेसर आए थे हमारे वाइवा में और उन्होंने एक बच्चे से कहा व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, जैसे पूछते हैं एमए के वाइवा में, तो सर उसने कहा कि आई लाइक रोमांटिक पोएट्री। तो उन्होंने कहा रोमांटिक पोएट्री में विच पोएट, तो मुझे याद है उस बच्चे ने कहा वर्ड्सवर्थ। तो उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ तुम्हें अच्छी लगती है, कोई दो लाइन सुनाओ। तो उसको लाइन उसने कहा डैफोडिल्स मुझे सबसे अच्छी लगती है।
तो उन्होंने कहा बेटा डैफोडिल्स का फूल देखा है तुमने? तो उस बच्चे ने कहा जी। उन्होंने कहा कहां देखा? कहता मेरे घर में है। तो मुझे याद है गोरखपुर से प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा बेटा वो डैफोडिल नहीं है, तू गेंदे को डैफोडिल समझ रहा है। तो जब तक आप कम्युनिकेशन जिसको आप सोचते मुझे आता है, वो सिर्फ इसलिए आता है नॉट बिकॉज ऑफ इस इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड, वी अंडरस्टैंड इट बिकॉज वी हैव सीन इट। अदरवाइज आप किसी को कहते हैं इट इज बिग, तो बिग भी एक डाइल्यूटेड टर्म है। कितना बिग? एज बिग एज एलिफेंट और एज बिग एज गुआवा और एज बिग एज एन एप्पल। कितना बिग हो सकता है, ये आपके दिमाग में सेंस नहीं बनता जब तक आप उस चीज को नहीं देख लेते। सो अंडरस्टैंडिंग अ थिंग और कम्युनिकेटिंग अ थिंग बाय शोइंग द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मीन्स अ कम्युनिकेशन इज डन। और जो भरतहरि का नाट्य शास्त्र है, जिसको सर बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते थे, वो जो नाट्य शास्त्र है, उस नाट्य शास्त्र में कम्युनिकेशन के ये डिफरेंट जो डेरिडा ने अब दिए 20th सेंचुरी में, वो तब दे दिए गए थे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर द थिंग्स इज बीइंग कम्युनिकेटेड और नॉट, वी डोंट नो। इवन स्टिल टुडे वी डोंट नो कि हमें जो चीजें पढ़ाई गई थी वो वेल कम्युनिकेटेड थी, या हम आज तक जो इस यूनिवर्स को समझ रहे हैं वो अपने दूसरे ज्ञान से समझते हैं। व्हाट वी हैव सीन, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग। बट मुझे ये लगता है कि राम कथा वो अल्टीमेट मीनिंग जिसे डेरिडा ने अपनी किताब में क्रॉस करके समझाया था कि दुनिया का अल्टीमेट मीनिंग कभी समझ में नहीं आ सकता। नो सिग्निफाइड but only signifiers. But I can say today that Ram Katha is going beyond these vicious circles of signifiers and signified. We understand it. आप राम कथा को कैसे लेते हैं आप जानिए, मैं कैसे लेती हूं मैं उस तरीके से समझ रही हूं। और जितने भी छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो राम कथा को कैसे लेते हैं। प्रोफेसर नैनवाल हैज डिफाइंड इट राइटली कि हम उस एज के बच्चे हैं जिन्होंने राम कथा के दिन कर्फ्यू देखा था, मींस अनइम्पोज्ड कर्फ्यू, बोला किसी ने नहीं। और मैं तो उस दौर में देवप्रयाग में पढ़ाने जाती थी, और वो जो बस वाला था, रोडवेज वाला, वो इतनी तेजी से चलाता था क्योंकि सरकार ने हर बस स्टैंड पे एक टीवी लगाया था कि ताकि ड्राइवर्स की एक डिमांड आई थी कि हम तो गाड़ी चलाते रह जाएंगे, रामायण कब देखेंगे। तो उनके लिए था, तो वो विद इन 3 आवर्स 6 बजे चल रहा है तो उसको हर हाल में 9 बजे ऋषिकेश पहुंचना है। सो दैट इज राम कथा। वी कैन नॉट डिफाइन राम कथा विद अप्लाइंग सर्टेन टूल्स गिवन बाय द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और whatever university, whatever syllabus we are teaching to our student, that meaning, that celebration जो हम नवरात्रे में करते हैं, जो विजयदशमी में करते हैं, जो राम की जीत का उत्सव है, वो ही अपने आप में हमारे जीवन की सोशल एनर्जी है। इट इग्नाइटेड एवरीथिंग, इट इग्नाइट्स एवरीथिंग विद इन अस। ये हमको कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है, बिकॉज ओनली भारत इज अ लैंड जहां पे मॉरालिटी का अल्टीमेट मीनिंग है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरे लिए अच्छा है, दूसरे के लिए खराब है। वी हैव दैट मीनिंग एंड दैट मीनिंग वी डिराइव्ड फ्रॉम राम कथा। हाउ आई कैन, कोई कहता नहीं आप सीता जैसा बिहेवियर करो, किसी पत्नी को नहीं बोला जाता कि आप सीता जैसे रहो, लेकिन वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में सीता का एक आइडियल प्रतिबिंब है जो हमको ये सब करने के लिए प्रेरित करता है। एंड वी नो हाउ टू बिहेव सोशली, वी नो हाउ टू बिहेव विद इन अ फैमिली, वी नो हाउ टू लिव इन अ फैमिली विद सर्टेन रिलेशनशिप, दैट वी अंडरस्टैंड। किसी ने नहीं पता, आज भी आप कहते हैं कि राम राज्य द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो राम राज्य कैसे होता था और कैसी गवर्नेंस होती थी, वो अंतिम व्यक्ति तक की जो गवर्नेंस है, जिसको हम लोग बहुत बोलते हैं कि जब तक अंतिम व्यक्ति के पास वो संपन्नता नहीं आएगी या उसके आंसू नहीं पूछेंगे, वो नेहरू जी की स्पीच के बाद डाउन द लाइन हम हर जगह ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करें, लेकिन वो गवर्नेंस राम राज्य ने हमको दी। तो मुझे ये लगता है जो सोशल एनर्जी है, जो उत्सव धर्मिता है, जो पूरा समाज उसको सेलिब्रेट करता है, सदियों से सेलिब्रेट करता आ रहा है, भिन्न भिन्न रूपों में सेलिब्रेट करता आ रहा है, उसने हमारी पूरी
पूरी एक कॉन्शियसनेस को, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, मींस भारत स्टैंड्स फॉर व्हाट? भारत स्टैंड्स फॉर राम, भारत स्टैंड्स फॉर राम कथा, भारत स्टैंड्स फॉर द नंबरलेस विजुअल रिप्रेजेंटेशंस एंड सिंबल्स ऑफ राम कथा even today, and we would be continuing it till the end. जब तक धरती रहेगी, पृथ्वी रहेगी, हम लोग राम कथा के प्रतिबिंबों का ही रिप्रेजेंटेशन हर जगह करते हैं। वही आइडियलिज्म, वही मॉरल आइडियलिज्म को हम लेने की कोशिश करते हैं। जब वेस्ट महिलाओं को डायन कह के मार के कुओं में डाल रहा था, उस समय भी आपके पास शबरी का प्रतिबिंब था, उस समय भी आपके पास सीता का प्रतिबिंब था, उस समय भी आपके पास हजारों ऐसी महिलाएं थी, उस समय भी आपके पास द्रौपदी का प्रतिबिंब था। द मोस्ट डायनामिक फेमिनिन एनर्जी इन द महाभारत, वो हमारे पास मौजूद थी। तो इसलिए जो भी एकेडमिक्स जिस भी प्रतिबिंब की तलाश करता है, वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी आर ऑलरेडी हैविंग इट थ्रू आवर रिलीजियस बुक। ऐसी कथाएं जो मनुष्य रूप को चित्रित करती है। राम ने कभी कोई मिराकल नहीं किए कि रामचंद्र जी थे तो कोई मिराकल हो गया। आपने उसका जो लंका सेतु का वर्णन किया तो कोई ऐसे मिराकल नहीं थे कि उन्होंने यूं किया और बना दिया। सारे लोगों को उसमें शामिल किया, सारे बानरों को उसमें शामिल किया। वो गिलेरी का भी जिक्र आता है, उस गिलेरी को भी शामिल किया कि कहीं हमारे अंदर एक अभिमान ना आ जाए कि हम इस पद पे बैठे तो सारा पृथ्वी हम ही चला रहे, हम अकेले कुछ नहीं चला रहे। ये सारे छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर, वनस्पति से लेकर, हमारे वानरों से लेकर, हमारे आदिवासियों से लेकर सब इस काम में लगे थे। तो आपने सही कहा कि सोशल अकाउंटेबिलिटी से लेकर, सोशल जस्टिस से लेकर, जेंडर डायनामिक्स से लेकर, इको फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शनिज्म, जितनी दुनिया में जितने फ्रेमवर्क हैं, एकेडमिक टूल है किसी सोशल बिहेवियर को नापने के, किसी की एजेस की कॉन्शियसनेस को प्रतिबिंबित करने के लिए, वो निश्चित रूप से राम कथा में हम सब उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फॉलो करते हैं। और ये एक इतना रिच टेपेस्ट्री हमारे पास है, इतना रिच खजाना हमारे पास है कि इस खजाने के जितनी सेमिनार हो जाएं, जितनी वर्कशॉप हो जाएं, वो सब नए रूप में आएंगी। सम रिसर्च स्कॉलर्स आल्सो आई कैन सी फ्रॉम हियर, एंड फॉर यू फॉर PhD टॉपिक्स इट्स अ फैंटास्टिक टॉपिक, नॉट ऑन अ होल राम कथा बट जस्ट पिक अप ओनली वन डायनामिक of Ram Katha, be it from gender perspective or be it from feminist perspective or eco criticism, just pick up one only, क्योंकि हम पूरी राम कथा को एक थीसिस में समाहित नहीं कर सकते। और मुझे ये 2 दिन का सेमिनार है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अलग अलग डायनेमिक्स में प्रोफेसर KM पांडे जी बनारस से हमारे बीच में आए हैं। आपने मुझे बताया कि आपके एक रिसर्च स्कॉलर सीता पे PhD थीसिस लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा एक उठाइए तो आपको पूरा संसार, पूरा सागर, उस पर लिखी गई हजारों किताबें आपको दिखाई देंगी। उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन होंगे, उसके सोशल रिप्रेजेंटेशन होंगे। वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर, स्पेशली प्रोफेसर पल्लवी मिश्रा फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इम्पॉर्टेंट seminar, national seminar on this social energy, and I hope, I was just searching for Dr. Dhananjay is coming. Okay. I'm just happy that this ICSSR has funded for this national seminar. ये अपनी importance का है। हमको narratives, हमको अपने curriculum need to be changed and no need to measure our टाइमलेस, टाइम इमेमोरियल से जो मेजर हो चुके हैं, उन चीजों को हम अपने कथानक से मेजर करें, अपनी चीजों से मेजर करें। तो आई रियली appreciate, and I am one with Professor Kapil Kapoor in this regard, that Ram Katha is ultimate from 0 to infinity. We cannot explain it, we cannot say yes this is the outcome of my thesis, but yes we can at least discuss the different dynamics of Ram Katha. With these words, thank you so much for inviting me, and I am the part of this seminar. I am really very happy to this. Thank you.